Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat. सो आज का टॉपिक लिया है ग्रोथ माइंडसेट. जो भी कारण है आप लोगों ने लिया है, बट इट्स अ वेरी पावरफुल टॉपिक बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव वर्क विद they come to me with the mindset of fixed mindset. Whatever little experience they have done, they think that's all. बहुत बड़ी भ्रांति है ये कि मैंने किया और इतना पाया, इसका मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है. बड़ी भ्रांति है. That's called fixed mindset. I will go in details both mindsets. ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है और फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है, सूत्र भी बताऊंगा. अब आप प्रकृति की तरफ नजर डालिए. टेल मी वन थिंग विच यू सी और फील और एक्सपीरियंस विच इज नॉट चेंजिंग. थिंकिंग चेंजेस, हेड टू हेड इट चेंजेस, विद इन योर हेड इट चेंजेस. Spot one thing which is unchanging in this universe. Nothing. Right? So in this world where everything is changing, what we are looking for is stability, unchange. कितनी बड़ी भ्रांति में जीते हैं हम लोग. सो प्रकृति हमको दो ऑफर देती है, या तो ऊपर चले जाओ या ये मानते हैं क्योंकि ग्राफ खींचोगे तो अनचेंजिंग का ग्राफ ऐसा आएगा, ग्रोथ का ग्राफ ऐसा आएगा और डिक्लाइन का ग्राफ ऐसा आएगा. सो इन दिस यूनिवर्स बाय योर 5 सेंसेस, प्लीज अंडरस्टैंड दैट 5 सेंसेस को यूज करते हुए आपको कोई ऐसी चीज नहीं सुनाई दिखाई महसूस होगी जो अनचेंजिंग हो. इसमें से सूत्र क्या पकड़ें? अगर हम ये मान लेते हैं कि एवरीथिंग इज चेंजिंग, what would you capture as a point to follow? We must change. We also have to continuously strive to change. We do that? No, we don't. We want stability. Therefore, there is a conflict. जो प्रकृति में नहीं है हम उसको ढूंढते हैं या उसको पाना चाहते हैं. So, if there is only one growth and one decline, nature only offers 2 choices, and therefore we have to now decide what do you want to do. Whether you want to choose this or you want to choose this. आपकी choice है. If you don't make a choice to grow, what are you choosing? Common sense. इसमें कोई MBA करने की जरूरत नहीं है. Be it your business, be it your life, be any dimension, you have to choose growth, otherwise you are by default you are choosing decline. ये बिजनेसमैन नहीं समझते हैं. आज आप स्टार्टअप भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पर. ये सबसे बड़ा पॉइंट होना चाहिए कि you have only one choice to make. Either you grow or you decline. If you don't intentionally grow, default you are going to decline. And Indian statistics, if you see, you will get a little bit of shock. First generation 100 people, second generation 30 people, third generation 12 people, and fourth generation only 1 person. इसका मतलब 100 लोग अगर शुरू करते हैं तो चौथी जनरेशन में Why? You go to Japan. Japan has 150 generations working in one business. Because I think we are not following this principle that growth is you have to make a choice. And growth is always bit painful. पहाड़ की चढ़ाई पेनफुल होगी, हालांकि ढलान पे गिरते वक्त भी पेन होगा, पर पहाड़ की चढ़ाई पे पेन होगा. हम पेन को अवॉइड करना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू बी कंफर्टेबल एंड वी वॉन्ट टू बिजनेस ऑल्सो. बिजनेस इज कंफर्ट. वाओ, आई नेवर सॉ से. But it doesn't mean that it is uncomfort that you cannot tolerate. You will have to
increase your bandwidth of tolerance, and that will happen when you have a vision and mission. So पहला सूत्र मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बताऊं what is the ABC of mindset, which is growth mindset. A accountable, B blame, તમારા માટે સિમ્પલ જ છે. C casual. There are three choices. You always have three choices. Either be accountable, or blame somebody or some situation or someone else, or be casual about it. Take any case in your life. If you are concerned about something, let us say you are concerned about your business, or you are concerned about your relationship with somebody. If you are concerned, you have three choices, A, B, C. You can blame Sarkar, you can blame taxation system, you can blame market, you can blame competition, you can blame your employees. Or you can take responsibility that I will take responsibility, I am accountable, and I will do what is required. ये नहीं होता है. Most people in India are choosing B. Or many of them also shift to C, casual. શું કરીએ હવે, ચાલે છે, જવા દો ને, નીકળી જશે. Now think of something which is your concern and what are you choosing? A means effort. B is very simple. C is also very simple, casual, चलते हैं, जाने दो, देखेंगे, वक्त से अपने आप ठीक हो जाएगा. So ABC of mindset is, this is a sutra all growing organizations, growing people choose. So growth mind always takes A choice. A choice means I am accountable. Not that I am responsible, I am accountable. That something which concerns me, I can do something about it. My relationship with my spouse concerns me. Rather than blaming spouse, rather than saying चलने दो, अब जिंदगी निकल रही है, निकलने दो, I can say I take responsibility to do something about it. My business is declining, I can say competition is bad, phlana, dhimkana, people don't work, etc. You can always say, શું કરીએ હવે, ચાલે છે, ચાલવા દો ને, જેવી રીતે ચાલે છે. If you choose C, you're gradually in B and C, both you are going down. So those who are into business, and especially startups, they will have to follow this principle very religiously. You have to take responsibility that if it has to be, I will do it. Whatever is required. ये प्रिंसिपल को हम पूरा थ्रू आउट. सो अब मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि व्हाट डू पीपल विद ए ग्रोथ माइंडसेट थिंक डिफरेंट और डू डिफरेंटली, बिकॉज दिस इज व्हाट विल ऐड वैल्यू टू यू. ग्रोथ माइंडसेट के लोग अलग क्या करते हैं और अलग कैसे करते हैं. मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगा and I will show all my formulas with examples, real life examples, no theoretical talks. So first is, what do they say when desired results are not achieved? आपके यहाँ भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके desired result नहीं है. I want to be listed in stock exchange, I want to have a turnover of this, I want to have market share of this. अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या बोलते हो? हाँ? You are trying to find out कि मेरे को blame है कि what did I do wrong. Of course, intention is good that I want to find flaws in myself. बराबर है? That is partly taking responsibility that you started searching yourself. But most people will not say so. They will say market. They will say pricing. They will say competition. They will say Sarkar policy. They will say something else other than them. So, fixed mindset goes to failure, and growth mindset
does not go to failure, it goes to unsuccess. थोड़ा सा फर्क कर रहा हूँ शब्दों का मैं, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा. They don't say they are failed, they say they have unsuccess. दो शब्दों में फर्क है. फेल्योर का क्या मतलब है? फेल्योर मीन्स यू नाउ क्विट. So whenever something goes wrong and you want to withdraw, you can say I have failed. Or growth mindset people say there is no word called failure, I am not successful. There is a difference between failure and not successful or unsuccess. बहुत बड़ा सूत्र है ये. And majority of, I work with some 20,000 people. You name companies in Ahmedabad, Bombay and Delhi. I have worked with the owners. I have found this word is very, very unfamiliar, unsuccess. It's not a dictionary word. I have created it because I don't want to say failure. I am saying, अगर नहीं हुआ तो मैं फेल नहीं हूँ, मैं सफल नहीं हूँ, वो हो सकता है. I am not successful, but I am not a failure. Because like he was sharing, the chair was sharing that he was failure many times. That's not true. अगर वो फेल होता तो आज यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता था वो. Failure means quit. So we must define success. Because अगर हम बात कर रहे हैं हमारी सफलता की, तो हम पहले डिफाइन तो कर लें सफलता किसको कहते हैं. So success is achievement of predefined, predetermined. मिल जाए तो उसको आप नहीं बोल सकते कि सक्सेस हुआ है. You will have to decide before making attempts, predetermined and a challenging goal. If the goal is not challenging, you cannot call that it is a success. So you, when you attempt something, you should say, does it challenge me? Now imagine Dhirubhai Ambani planning to set up a refinery of 30 million tons in the time when Indian largest refinery was 5 million tons. भारत देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी उस वक़्त, आई एम टॉकिंग अबाउट 1990s, सबसे बड़ी रिफाइनरी 5 मिलियन टन थी. भारत को आज़ाद हुए बहुत सारे साल हो चुके थे और ये एक अनाड़ी आदमी 30 मिलियन टन्स की इमेजिन कर रहा है. सो इमेजिन व्हाट वुड एक्सपर्ट्स हैव टोल्ड हिम. So they said, are you mad? Where is the market? Where are the roads you are setting up in Jamnagar? रोड्स नहीं है दिल्ली तक जाने के लिए. उन दिनों में बहुत सकड़ी रोड्स होती थी. तो how do you? He said, don't tell me why I can't do it. And there's another sutra I will share. He said, यार देखो एक्सपर्टीज इसमें है कि तुम मेरे को रास्ता दिखाओ. अक्सर आपको चारों तरफ जो मेंटर्स मिलेंगे ना, वो आपको रास्ता बंद है वो दिखाने का बोर्ड दिखाएंगे. ये देखो, आई एम टेकिंग दैट डिसीजन, नाउ टेल मी हाउ कैन इट हैपन, कैन यू शेयर मी व्हाट पॉसिबली कैन हैपन. एंड देयर इज अ डायलॉग व्हिच गोज ऑन एंड आई विल शेयर विद यू लिटिल लेटर कि व्हाट हैपेंड. And today that refinery is not 30. 30 was set up by Dhirubhai Ambani. 40 and 30 added by Mukesh Ambani. Today it is 100 million tons, largest refinery of the world. किसने बनाई? 10 student fail ने. Sometimes you can imagine that education blocks us because it gives us an impression that I know. So when you set goals, make efforts but don't succeed, you are not a failure.
सो अनसक्सेस की एग्जाम्पल्स देखो, मैं आपको धीरू भाई की बता रहा था एग्जाम्पल, आई विल कोट इट हियर मोर डिटेल्स. थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, इनकैंडेसेंट लैम्प, ऐसा हिस्ट्री बोलती है कि 10,000 एक्सपेरिमेंट्स ही डिड. तो जब मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था इसको, मैंने बोला कमाल पेशेंस हो गया यार इस आदमी में, 10,000 बार टॉलरेट कैसे किया उसको. हम तो 4-5 बार में बोलते हैं नहीं होता है. 10,000 times he experimented before he could bring out a lamp. 10,000, unbelievable. But that's why their name is in history. Number of patents in the world today, largest number is in the name of Thomas Alva Edison. Ambani ji is a great example of success. And I was talking to you about it. I met him only for few seconds. And I at that time, on the 5th floor of Nariman Point, there is a hotel. On the 5th floor, there is a swimming pool and a cafeteria. And he was taking around, and I and my friend went to meet him. He didn't stop. He was walking with a man. Man was in the white pant and shirt, and this fellow was in half pant, khaki knicker and t-shirt, and they were both walking, brisk walking. And we went, and he didn't stop. He only said this. Iska matlab, he knew that person who was with me. I later read, there are books which are banned in India. If you want to read, you have to buy from abroad, about Dhirubhai Ambani. It says that he used to pay in the year 1990, 1 lakh rupee to a consultant whose role was to walk with him for 1 hour. तो घूमने के लिए तो नहीं घूमता, 1 लाख देता होगा वो. उस वक़्त का 1 लाख शायद आज के 10 लाख 20 लाख के बराबर हो, शायद ज़्यादा हो. So what was different in him? Why did he succeed so big? We have to find out all those sutras. So I will try to cover all those sutras here. But examples are there. Then there is another Steve Jobs. Apple की बात आज हो चुकी है थोड़ी बहुत कि Apple अभी decline हो गया है. Promoted by Steve Jobs, he was thrown out of that. अपनी ही कंपनी में से इसको बाहर निकाल दिया गया था. दूसरी कंपनी गई, अपनी कंपनी खेली, 3 जगह फेल हुआ वो. And then he was called back to Apple. And that he created today's Apple. Last 10 years of his life, he was suffering from cancer. And he knew it. Any day can be the last day. Can you imagine if that happens to you? What will you be thinking? I can't imagine. Now, all successful people have some history which we don't know much, which can be actually a kind of a margdarshan for us. So these are all people who are unsuccessful, but they did not consider themselves as failure. तो आज से आप फेल्योर शब्द को काट दीजिए. आपके डिक्शनरी में फेल्योर शब्द हो तो उसको काट दीजिए. आप बोलिए आई एम अनसक्सेसफुल. And I think everybody someday or the other, sometime or the other, does reach that place called unsuccess. Especially when you have ambitious goals. When you have higher goals, you will reach unsuccess very fast. And the moment you quit it, you're out. ये नेचर का फिल्ट्रेशन प्रोसेस है. कोई सवाल? अपने आप से सोचिए कि आप कहाँ पर फेलियर की तरह से अपने आप को छोड़ रहे हो या छोड़ना चाहते हो. And think that you are unsuccessful. While facing a crisis or challenge, what do?
when you face a challenge or a crisis, चैलेंज को पकड़ के चलो, क्या करते हो आप? सोचो, ये आने वाला है, हर ग्रोथ एस्पिरेंट को ये आने वाला है. फाइंड ए सोल्यूशन. हाँ, बट गिव आवर बेस्ट का मतलब, ये तो अंग्रेजी की कहावत है, गिव आवर बेस्ट, पर उसमें आप यू आर फेसिंग ए चैलेंज दैट यू कांट सी एनीथिंग हैपनिंग, and it happens in life. Keep patient and have faith and keep working that. Yeah, have faith. So what most people do is they quit or change. जब भी उसको लगता है कि भाई चैलेंज आ गया, तो उसको they make a mid course correction and they say I am dropping it, or they quit. And that's the biggest challenge of startups. Do you know 97% of startup is failing now? And they're all qualified people. Most of them are qualified people. Why are they failing? You have to ask a question. Why are they failing? Perseverance is one quality which makes you to attempt again and again, but you have to take a call that I want to retry. Mostly people quit. They say नहीं होता, मैंने बहुत try कर लिया है. हाँ, impatient मतलब degree of impatience can be different for different people, but they say अब तक नहीं हुआ तो नहीं होगा. They come to very quick decision. So the other sutra is saying that crisis and opportunity are two sides of a coin. एक कॉइन की दो साइड होती हैं, हेड एंड टेल. क्राइसिस एंड अपॉर्चुनिटी आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन. अब समझने की कोशिश करते हैं. इफ़ यू आर फेसिंग ए क्राइसिस, यू हैव ए चॉइस टू क्या करें. भगवान को गाली दे दें, किसी और को गाली दे दें, किस्मत को गाली दे दें, छोड़ दें इसको, या सिक्के को उल्टा करके देखें. इसका मतलब सिचुएशन को रीअसेसमेंट में लेके आए. ये बहुत कम लोगों में होता है. लाइक ए कॉइन हैज टू साइड्स, एवरी क्राइसिस हैज बिल्ट इन अपॉर्चुनिटी. एंड नाउ गो एंड सी ऑल सक्सेसफुल पीपल. All successful people, they have come across situations of crisis. ऐसा रेयरली कोई इंसान मिलेगा जो कंटिन्यूसली ग्रोथ करता गया हो. डिप आते ही हैं. The moment you look at a coin and see crisis, the moment you look at a situation and say it is a crisis, I can't handle it, you're out. But if you, the moment you turn it around, now it happened with us, our company Unnati. We practiced it there. This was 24th of March 2020 that Prime Minister of India declared that कल से संपूर्ण लॉकडाउन पूरे देश में. और हम स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर स्टार्टअप्स के साथ ज़्यादा काम करते हैं. दे आर नॉट हैविंग लार्ज फंड्स, लार्ज एस्टेब्लिशमेंट्स. So seeing that news at 8 o'clock, I called my directors. I said, this looks to be a crisis to many, but this is an opportunity because I believe in that theory. So they said, how you see it as an opportunity? I said, it is an opportunity to help my target audience. उसके बाद हमने 3 साल तक every Sunday, some of you may have attended, every Sunday we used to run a Zoom business sessions, how businesses can be done. All aspects of business. Please go and look at our, what is the name of this? Unnati I Can I Will. Unnati I Can I Will is a YouTube channel. उसमें हमने सारे रिकॉर्डिंग डाले हुए हैं. Every component of business is covered there. कि ये business कैसे किया जाता है. For example, recruitment. For example, how roles, responsibilities are to be defined. For example, how strategic levers are to be deployed. For example, how marketing, how sales, how every part. 3 years we ran.
because we saw as an opportunity in that. कुछ सवाल? So we got an opportunity because we have a foundation, an NGO called I Can, I Will Foundation. उसका mission है Build India. Build India through small and medium sector. We don't work with larger sector people. We work with small organization, 20, 30, 50, 100 crore. And keeping in mind that mission, we went on to webinars and did it for first we did it for 21 days, then we did it for 14 days, and then people said, need continue, and we did it for 3 years. क्राइसिस एंड अपॉर्चुनिटी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मेरे लाइफ में मैंने देखा है, दिस इज स्टोरी ऑफ ऑपरेशन फ्लड. हैव यू हर्ड ऑपरेशन फ्लड? थोड़ा बहुत सुना है. दिस इज ए स्टोरी ऑफ 1965-75 तक की. In that time, India had shortage of milk. इतनी हालत ख़राब थी कि अगर किसी का दिल्ली ट्रांसफ़र होता था, बम्बई ट्रांसफ़र होता था, तो सबसे पहले वो लागबग करके और किसी से रिलेशन निकाल के और एक कार्ड बनवाता था कॉल्ड मिल्क कार्ड. दिल्ली में मिल्क कार्ड लिखता था. मिल्क कार्ड के ऊपर दूध मिलता था बच्चे को पिलाना हो तो. आपको पता नहीं होगा, पैदा भी नहीं होंगे अभी तब तक तो आप. दैट वाज कंडीशन इन इंडिया. देयर वाज अ क्राइसिस इन यूरोप. व्हाट वाज द क्राइसिस? क्राइसिस वाज कि so much of milk, what to do with this damn thing? So they first threw in the sea, फेंक देने का समुद्र में. फिर जब एनवायरमेंटलिस्ट अलर्ट हो गए तो वो फेंक भी नहीं सकते थे. सो दे यूज टू कन्वर्ट इट इनटू पाउडर एंड बटर ऑयल, जिसको हम घी बोलते हैं, एंड स्टैक. बट दैट वाज अ प्रॉब्लम. व्हाट टू डू विद दैट? सो देयर वाज अ प्रॉब्लम इन वन कंट्री, देयर वाज ए चैलेंज इन वन कंट्री, एंड देयर इज अ डिमांड इन वन कंट्री. पॉसिबिलिटीज. सो क्राइसिस एंड अपॉर्चुनिटी कैन मीट टुगेदर. जस्ट सिक्के को उछालने की बात है. So what was done at that time was that we went to them. We said, तुम्हारे को दूध फेंकने में प्रॉब्लम आती है? हाँ, हमको दे दो. बोला हमारा तो हेडेक, ले जाओ तुम इसको. पहले तो हाँ कर दिया, फिर बोले पर हमको क्या मिलेगा? हमने बोला तुमको बहुत कुछ मिलेगा, वक्त बताएगा. So what we will do, we will bring that powder and butter oil, mix it, make it milk, sell it to people, take some money. From that money, create infrastructure of cattle feed plants, medical services for buffaloes, cows, and dairies, and whatever you call it in terms of milk. That scheme was called Operation Flood. फ्लड उस वक्त 65, 67, 68 में नाम दिया था. What has happened by that? It's called White Revolution. Banaskantha, there is a dairy, it's called Himmatnagar Dairy, Banaskantha Dairy. 1970, it was processing, not producing. You don't produce milk in dairy. You get from cows, buffaloes, and from farmers and process it here. They were processing 50,000 liters of milk per day. And बहुत होता है, ऐसा सोचते थे हम लोग. अरे यार बहुत हो गया, 50,000 लीटर. ये है 1970 की बात. आज क्या है, कल्पना है आपको? सेम डेयरी. इमेजिन, लगाओ दिमाग को, कोई फिगर निकालो.
हैं? 10 लाख। और कोई फिगर रोज का? अरे यार, अब ये भाई अब फेंकने वाला है। नहीं फेंको मत यार। टुडे इट इज प्रोड्यूसिंग 33 lakh liters per day. How many times? 66 times. Today we are supplying milk and butter to African countries. हम बोरो करते थे पहले, उधार लेते थे, आज हम उनको सप्लाई कर पा रहे हैं। Today they are trying to see this model कि यार ये मॉडल है क्या, कैसे कर लिया आपने इतना बड़ा ग्रोथ। बिजनेस में भी वो ग्रोथ पॉसिबल है, इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं आपको। द राइट माइंडसेट इज रिक्वायर्ड। राइट माइंडसेट, एनी बिजनेस हैज इन इंडिया पोटेंशियल विच इज अनबिलीवेबल, एनी बिजनेस, एंड इफ इट इज नॉट टेकिंग प्लेस द प्रॉब्लम इज विद यू एंड नथिंग एल्स। So when this thing started flowing out and Dr. Kurian died, then I separated from that organization and I started coaching in business. तीसरा सूत्र बहुत कॉमन इंडिया में सब्जेक्ट होता है, आ महाराची ना था कारण के सांभळ्યું છે आ नहीं थी सके क्योंकि, बहुत बड़ा दिमाग लगता है उसमें क्योंकि में, ये मेरे से नहीं होगा क्योंकि, ये हमारा एक पेट सेंटेंस है। उस थॉट को हमको हटाना है। अभी किससे हटाना चाहिए? वाई इट कांट बी। और वाई पे इतना जोर देते हैं, इतने एग्जांपल्स देंगे आपको वाई पे। देखो ये नहीं हो सकता, छोटी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती, क्योंकि फंड चाहिए होता है, लोग चाहिए होते हैं, रियल एस्टेट चाहिए होता है, महंगा हो गया है सब कुछ, बहुत कारण है उनके पास। वेरी कॉमन डिजीज ऑफ इंडिया, इसको रिप्लेस करना है आपके हाउ कैन इट बी। सिर्फ ये इतना सा चेंज कर दो, वाई इट कांट बी को काट दो और हाउ कैन इट बी। आपकी जिंदगी में कभी भी ये सवाल उठे जो आप चाहते हो नहीं हो रहा है, अगर ये सवाल उठे कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो भाई को छोड़ दो, उसको बोलो मेरे को ये करना है, ये बताओ ये कैसे होगा। अब तुम अगर अंधा अंधे से मांगेगा तो अंधा अंधे को क्या देगा। बट ये क्वेश्चन अगर आप अपने अंदर उठा लोगे कि हाउ कैन इट बी, व्हाट शुड आई डू दैट इट हैपन्स, इस पर फोकस नहीं है इंडिया में। मेरे को पिछले 30 सालों में मैंने 20-30 हज़ार लोगों के साथ काम किया। बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है सुन के। मैं उनसे पूछता हूँ, भाई साहब आप ये बताओ कि आपका धंधा 30 साल से चला रहे हो, 40 साल से चला रहे हो, लेकिन आपकी ग्रोथ तो दिख नहीं रही है। मैंने रिसेंटली एक हाउस खरीदा, तो हाउस के बेचने वाला थोड़ा नाटक कर रहा था, पता नहीं अभी बेचूंगा कि नहीं बेचूंगा, ऐसा वैसा। सो आई आस्क्ड माई बिजनेस एनालिस्ट कि भाई ज़रा इसकी जन्म कुंडली निकाल दो। जन्म कुंडली मतलब बैलेंस, सब कुछ मिलता है आज आपको, आप सब कुछ, यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग अबाउट एनीबडी नाउ। सो वी फाउंड आउट हिज जन्म कुंडली, इस कंपनी की 3rd year ही इज गोइंग इन लॉस। 1 year लॉस, 2nd year लॉस, 3rd year लॉस। सो आई कॉल्ड हिम, आई सेड तुमसे मैं मकान की बात कर रहा हूँ, पर मकान की बात तो मैं बाद में करूँगा, पहले ये बताओ कि तुम 3 साल से लॉस में चल रहे हो, क्या बात क्या है। तो आपको कैसे पता लगा? मैंने कहा आज सब कुछ पता लग सकता है अगर लगाना चाहे कोई तो। ये बताओ कि ये जो फैक्ट मैं बोल रहा हूँ वो सच है या नहीं, क्योंकि मेरे सामने लिखे हुए हैं वो। तो उसने बोला रुको रुको, मैं आधे घंटे में आपके ऑफिस आके पहुँचता हूँ, आपको क्या चाहिए। मैंने कहा मेरे तेरा मकान चाहिए मेरे को। बोला मेरी मदद करोगे? मैंने पक्की %, 100%।
ही डिड नॉट डिनाई, ही सेड ओके डन, मकान इज डन, मेरे को ये बताओ इस गड्ढे में से निकालोगे कैसे। मैंने कहा अभी ये कैसे निकालने का मत पूछ, गड्ढे में से पहले निकलने की बात करते हैं, अभी कैसे तेरे को क्या समझाऊंगा मैं, बच्चा कैसे पैदा होता क्या बताओगे आप, ये बताया नहीं जा सकता है, बट दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज यू आर। और ये मैं दिन रात बिजनेसमैन के साथ काम करता हूँ, सो मैनी बिजनेस पीपल आर सफरिंग इन देयर लाइव्स, दे आर नॉट एबल टू ग्रो, दे आर स्पेंडिंग मनी, दे आर स्पेंडिंग स्लीपलेस नाइट्स। क्वेश्चन आपको यही उठाना है सिर्फ कि हाउ कैन इट बी, और ये जिस दिन आप उठाना शुरू करोगे आपके सामने आंसर्स आने लग जाएंगे। आज तक आपने उन आंसर्स की तरफ पीठ की हुई है। अब थोड़ा मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाता हूँ, बिकॉज मैंने बताया मैंने बहुत सारे ग्रंथों को रेफ़र करके जो मेरा मैनुअल बनाया है वो वेस्टर्न फिलॉसफी पे नहीं है। हम वेस्टर्न फिलॉसफी के लोग नहीं हैं, हमारी फ़िलॉसफी ईस्टर्न फिलॉसफी, वो ग्रंथों से, परमात्मावाद से, स्पिरिचुअलिटी से ओतप्रोत है। वो हमने उनको ढकोसला बना दिया है, माता जी के नाम पे डांस करने लगे हैं, वो बात अलग है। ग्रोथ माइंड हैज़ हाई डिग्री ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। आप अपने बारे में कितने ज्ञानी हो, कितने अवेयर हो, कितने अपने आप को समझते हो, जानते हो, बहुत गहरा सवाल है। और इसमें हम हमारे प्रोग्राम में बहुत सारा समय डालते हैं, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक आपकी स्पिरिचुअल कोशेंट नहीं बढ़ेगा, और स्पिरिचुअल कोशेंट नहीं बढ़ेगा तो आपकी मटेरियलिस्टिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? आप बोलोगे धीरू भाई कहाँ स्पिरिचुअल था? स्पिरिचुअलिटी आरती से, पूजा से, डांस करने से नहीं है कोई रिलेशन उसका। ये तो तुमने बना दिया कि टीका लगाते हो इसलिए स्पिरिचुअल हो, तुम जनेऊ पहनते हो इसलिए स्पिरिचुअल हो, ऐसा कुछ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज ए वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट। सो नॉलेज, स्किल एंड टैलेंट, हमने अब ज्ञान को 3 टुकड़ों में बांट दिया है। अक्सर लोग नॉलेज और स्किल में टिके हुए हैं, क्या ज्ञान है और क्या कुशलता है। आप आफ्टर ऑल जब किसी का इंटरव्यू लेते हो तो यही बोलते हो ना, कितना पढ़े लिखे हो, कितना एक्सपीरियंस है। व्हाट अबाउट टैलेंट? टैलेंट के ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। अब ये टैलेंट स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ी डिफरेंट डायमेंशंस में जाना पड़ेगा। So spirituality is nothing to do with puja part. Spirituality is to expand your consciousness. थोड़े शब्द बड़े भयानक लगेंगे, तो मैं अगर इन तीनों को बांटूं, ज्ञान, कुशलता और प्रतिभा। प्रतिभा का मतलब आपकी टैलेंट, प्रतिभा का मतलब एक ऐसी चीज़ जो तुम पैदाइशी लेके आए हो। अब ये बड़ी जल्दी से हजम नहीं होगी बात, ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, और अगर आप देखने लगोगे तो अब आपको दिखाई देने लगेगा। तो मैं स्कूल में जब जाता था और स्कूल से जब घर आता था, बच्चा था, तो सड़क पे पत्थर को ना ठोकर मारने का और उसको नाली में डालने का, ये दोनों साइड नाली बनी होती है, नाली जानते हो, तो ना उसमें मेरे को बड़ा मज़ा आता था। माँ गाली देती थी कि साला जब देखो तो जूते तोड़ता ही रहता है। मेरे को एक दिन हमारे स्पोर्ट्स टीचर ने बोला इधर आ, बोला इधर आ, क्या इसको पत्थर को तू मार के दिखा जरा मेरे को। तो मेरे को लगा उसने मेरे को पकड़ लिया है तो ज़रूर नाराज़ होगा। मैंने कहा सॉरी अब नहीं करूँगा। बोला नहीं मार के दिखा। तो मेरे समझ तो नहीं आया, फिर मैंने मारने की कोशिश की, राइट से नहीं लेफ़्ट से मार। तो मैंने लेफ़्ट से मारा। मुझे बोला कल से तू फुटबॉल फील्ड के पर आना। मैंने कहा आ जाऊँगा, मेरे को अभी तो छोड़ो। तो मैं फील्ड में गया और मेरे को 5 साल बाद पता लगा
आई वॉज राजस्थान में, मैं लेफ्ट आउट की पोजीशन का राजस्थान का प्लेयर था। मेरा बायां पैर ऐसा चलता है जो बहुत कम लोगों का फुटबॉल में चलता है, दाहिना तो सबका चलता है। मेरे को नहीं मालूम था, उसको मालूम था कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन उसने देखा तो सही कि अगर ये बाएं पैर से मार पा रहा है, ये इनबॉर्न टैलेंट थी मेरे में, जिसको किसी ने पहचाना। आपको आपकी टैलेंट को पहचानना होगा। खुद नहीं पहचानते हो तो आप ढूंढना शुरू करो, लोगों से रेफरेंस लो, लोगों से फीडबैक लो। देयर आर ऑलवेज सम टैलेंट्स विच यू आर बोर्न विद। अगर आपने आपका प्रोफेशन या बिजनेस उस टैलेंट के अगेंस्ट में चुना है तो आपकी कभी भी जीवन में प्रगति नहीं हो सकती। देयरफॉर हमारे प्रोग्राम्स में हम प्रतिभा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और प्रतिभा की रिसर्च हमने ऐसी की है कि प्रतिभा सिखाई नहीं जाती है, ये ज्ञान सिखाया जाता है। कुशलता प्रैक्टिस कराई जा सकती है, साइकिल चलाना आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा, पर प्रतिभा आपकी जन्मजात है और पिछले जन्मों के क्रेडिट स्कोर हैं। अब आप बोले पिछला जन्म कहाँ से आ गया इसमें, इसलिए स्पिरिचुअल है वो, ये आपके अंदर इनेट है, बाय बर्थ है। अगर आप आपके बच्चे के अंदर प्रतिभा को ढूंढ लो और उस बच्चे को उस चीज़ में डालो जिसमें उस प्रतिभावान है, तो उसकी परफॉर्मेंस को कोई नहीं रोक सकता है। पर अनफॉर्चुनेटली हम उसको अपने हिसाब से किसी चीज़ में, इंजीनियर बनना पड़ेगा तेरे को, डॉक्टर बनना पड़ेगा तेरे को, ये एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है जो हमने रिसर्च करके निकाला है कि ये हमने इग्नोर किया है इंडिया में, कि हमने प्रतिभा की तरफ ध्यान नहीं दिया है और ज्ञान की तरफ बहुत ध्यान दिया है। किताब पढ़ो, MBA करो, ट्यूशन करो, तो ज्ञान आ जाएगा, किताबी ज्ञान आ जाएगा, कुशलता प्रैक्टिस से आ जाएगी, पर प्रतिभा नहीं आ सकती है क्योंकि वो आपके पूर्व जन्म के संस्कार हैं। लेकिन अगर आप इस जन्म में मेहनत करोगे तो अगले जन्म में थोड़ा और क्रेडिट स्कोर बढ़ जाएगा आपका। अब ये पुनर्जन्म की थ्योरी आ जाएगी, उसमें अभी विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, पर ये हमारा एक्सपीरियंस बोल रहा है। तो look at yourself and find out what you are talented in. Now, how will you find out what you are talented in? उसकी एक पहचान है, उसकी ये पहचान है कि वो आपको थकाती नहीं है, घंटों लगा दोगे तो भी आप करते रह जाओगे उसको। You don't get tired in talent. You have a natural tendency to succeed in that. मेरे को फुटबॉल किसी ने सिखाई नहीं थी, मैं तो जूता मार मार के चलता था। आपको एंटरप्रेन्योर को ये ढूंढना होगा कि उसकी टैलेंट क्या है, और उस टैलेंट को, उसके टेस्ट भी आते हैं अभी, फॉर्चुनेटली अभी टेस्ट आर अवेलेबल, यू कैन डू टेस्ट, फाइंड आउट व्हाट आर योर टैलेंट्स एंड रेस्ट्रिक्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू दोज। अगर आप नॉन टैलेंट एरिया में जाओगे तो आप बहुत मेहनत करोगे, रिजल्ट नहीं आएंगे। टैलेंट एरिया में जाओगे तो थोड़ी मेहनत से आपके रिजल्ट्स बहुत मैग्नीफाई हो जाएंगे। आपको ढूंढना ज़रूर पड़ेगा, उसके टेस्ट भी हैं, यू कैन ऑलवेज गो थ्रू द टेस्ट दैट इट विल गिव यू ए लिस्ट कि तेरी ये टैलेंट्स हैं, उन पे काम करने की कोशिश करो। ग्रोथ माइंडसेट का एक बहुत बड़ा एटीट्यूड होता है लर्निंग एटीट्यूड, उसको सीखने की बहुत इच्छा रहती है, कुछ भी कहीं से भी। वो ये नहीं बोलता कि मेरे को सब आ गया अब। तो आप ग्रोथ माइंडसेट की अगर बात करेंगे तो आपको लर्निंग एटीट्यूड को डेवलप करना होगा। लर्निंग एटीट्यूड क्या है? वो तब आ सकता है जब पहले आप ये स्वीकार करो कि जितना तुमको आता है उससे ज़्यादा सीखा जा सकता है। पर अगर आप सोचो कि मेरे को सब आता है तो घड़ा तो भरा हुआ है। It goes through consulting, coaching. You should have friends who are good in that sense. संगत, आपकी संगत कैसी है? आप किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हो? खाली चाय पीने, कॉफ़ी पीने, फिल्म देखने के लिए, या आपको
सीरियस डिस्कशंस, जनरल डिस्कशंस करते हो, कंसल्टेशन, बुक्स, रीडिंग, ये बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसमें आपका ग्रोथ माइंडसेट, लर्निंग एटीट्यूड की तरफ ले जाएगा। लर्निंग आपको कभी भी जीवन में बंद नहीं कर सकते हो आप, और आप धीमे 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 हो जाओगे। आज जिस स्पीड से मैं मोबाइल को ऑपरेट कर सकता हूँ, मेरा ग्रैंडसन उससे 10 टाइम्स स्पीड पे ऑपरेट करता है। वो ऐसे उंगलियां पिट 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 करता है, और 10 साल के बाद उसकी उंगलियां जो चलेंगी, वो दूसरी जनरेशन जो आएगी वो ज़्यादा काम कर रही होगी। तो आज के प्रगतिशील और चेंजिंग वातावरण में हम आउटडेटेड बहुत जल्दी होते चले जाएंगे, और अगर आउटडेटेड हो गए तो आपको एक ही चीज़ रोक सकती है, वो है आपका लर्निंग एटीट्यूड। सो यू हैव टू डेवलप दैट एनी अपॉर्चुनिटी यू गेट, learn, learn, learn. There is no end to learning. Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat.